Hi guys, first of all I welcome you all in my YouTube channel All Knowledge Achievers. Hi guys, this notice from the University Grant Commission is very good news for the students of MEd, those who are in final semester or those who have completed PG and want to take admission in PhD. So this is very important notice from the University Grant Commission, keeping in view and implementing the NEP 2020. So after review committee decided and they have given a good chance for to UGC net qualified candidate that in future PhD admission will be on the basis of net. So this notice number is here. You can see number F421 UGC net review committee 2024 net 1406 to 48 March 27 2024. So public notice, national eligibility test as an entrance test for admission to PhD. University Grant Commission conducts the national eligibility test through the National Testing Agency. The NET is conducted twice a year in June and December. Currently, the NET scores are used to award Junior Research Fellowship JRF and eligibility for appointment as assistant professor for those with a master degree. Many universities conduct their entrance test for admission to their PhD programs, requiring the student to write multiple PhD entrance tests. To help the student with one national entrance test for PhD admission as a part of implementing the National Educational Policy 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provision of the national eligibility test. Based on the expert committee recommendation in its 578th meeting held on 13 March 2024, the UGC has decided that from the academic session 2024 to 25, the NET score can be used for admission to PhD. This is very important information. अब जो हैं UGC नेट के जो स्कोर होंगे वो एडमिशन PhD एडमिशन के लिए हेल्पफुल होंगे. The NET score can be used for admission to PhD program in place of entrance test conducted by different universities or /higher education institution. From June to 2024 onwards, therefore, the NET candidate shall be declared eligible in 3 categories. 3 तरह के कैटेगरीज में जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा या अपेयर हुए होंगे नेट में, UGC नेट के एग्ज़ाम में. So category first is basically eligible for first admission to PhD with the JRF, second appointment as a assistant professor. Category second eligible for first admission to PhD without JRF, and second is appointment as assistant professor. Third category is eligible for admission to PhD program only and not for award of JRF or appointment as assistant professor. उसके बाद फिर आया डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी का रेट है डिफरेंट कैटेगरी समराइज. जैसा यहाँ पे टेबल में दे दिया गया है क्वालिफाइड कैटेगरी फर्स्ट अवार्ड JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि अच्छे मार्क्स अगर नेट में लिए हैं एग्ज़ाम में तो JRF उसको मिल जाएगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा फिर JRF के लिए. उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा एडमिशन टू PhD, उसमें भी वो जो है वो एलिजिबल हो जाए. उसके बाद कैटेगरी सेकंड हमारे पास आ जाती है जिसमें अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD, यानी कि नेट क्वालिफाई हो जाता है. क्राइटेरिया मिनिमम जो 6% लेता है हर सब्जेक्ट के अंदर से, उसमें एलिजिबल हो जाएगा ये. तो JRF नहीं मिलेगा, नेट इसका दिया जाएगा नेट. उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, ये PhD के लिए भी एलिजिबल होगा. उसके बाद जो है कैटेगरी 3 हमारे पास आ जाती है. कैटेगरी 3 इसमें जो है एडमिशन टू PhD ऑनली. यहाँ पे जो है सिर्फ इसको जो है वो PhD में एडमिशन मिलेगी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है आप जो है मार्क्स के बेस पे जो है
स्टूडेंट्स को पीएचडी के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये एलिजिबल हो जाएगा सिर्फ पीएचडी एडमिशन, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। उसके बाद जो है वो ये जेआरएफ के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसका जो है वो सबसे पहले जो है एक दरअसल ये क्राइटेरिया बना रहे हैं जिसमें ये देखेंगे कि पहले जो है सबसे पहले जेआरएफ कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उनको लिया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। थ्रू आउट कंट्री कहीं पे भी उसकी एडमिशन हो सकती है। उसके बाद जो है वो तीसरी कैटेगरी में वो लोग आ जाएंगे, अगर उसमें जो है वो वैकेंसीज़ बच जाती हैं तो फिर उसके बाद जो मार्क्स की बुनियाद पे जो है वो, यानी कि नेट के बाद जिनका मार्क्स थोड़ा सा कुछ मार्क्स से जो है छूटा है जिनका नेट, तो वो भी पीएचडी में उस बेस पे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहा द रिज़ल्ट ऑफ द एनटीए विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल में जो है वो नेट का जो है डिक्लेयर किया जाएगा रिज़ल्ट विद मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट यूटिलाइज मार्क्स फॉर एडमिशन, और मार्क्स भी बताए जाएंगे ताकि जो है वो ईजिली जो है एडमिशन हो सके पीएचडी के अंदर। द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू as per the University Grant Commission minimum standards and procedure for award of PhD degree regulation 2022। तो यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाइड जिनके लिए पहले ही से क्राइटेरिया बना है कि उनको इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो वो वैसा ही रहेगा। फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3, तो वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की कि वहाँ पे 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर जो नेट में लिया है वो 70% वेटेज दी जाएगी, और 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, और 30% आपका जो है वो किस में दिया जाएगा, वो इंटरव्यू में। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ द नेट मार्क्स, और पीएचडी एडमिशन जो है वो आपको दी जाएगी किस बेस पे, एक तो नेट में जो मार्क्स लिए और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू के अंदर जो मार्क्स है वाइवा वाइस में जो मार्क्स लिए वो मिला के एग्रीगेट फिर उस तरीके से आपको एडमिशन मिल जाएगी। द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो मार्क्स लिए हैं इसने नेट में, तो 1 ईयर के लिए वो एलिजिबल होगा, थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी वो एडमिशन ले सकता है। द नोटिफिकेशन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली at https://ugcnet.nta.nic.in। तो मनीष जोशी यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका सिग्नेचर, उनकी तरफ से जो है ये नोटिस सामने निकल कर आया है। तो इस तरीके से इन ब्रीफ अगर हम ये कहें कि अब जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही यूजीसी नेट आपको जो है वो उसमें अपेयर होना है। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद अगर आपका नेट हो जाए तब भी अच्छी बात है, और आप जो अपेयर हुए उनके मार्क्स जो है अगर आपका जो है वो अच्छे मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं वो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं आप एडमिशन टू पीएचडी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। सो गाइज प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you very much.